Document is visible to all of you. Hello. Yes, sir. So we should start discussing straight on Indian polity and governance. Largely, Indian polity and governance, from the point of view of examination, is basically the understanding of the constitution and the provisions in that constitution to maintain the governance and the mechanism of governance function that we will be discussing, and we will be outlining some of the important other features of constitution, and we will try to throw some of the lights on the historical background, how this came into existence, and we'll try to make it more rational, why knowing this some of the historical understanding is necessary to understand the government and the governance. And that is Indian polity. It is as a whole, we can say that Indian polity comprises almost each and every aspect which affect the citizenry of any sovereign. So, at least Indian territories. These are some of the points that we will be discussing. We'll try to cover them all of these points. I think I'm going to point out some of the aspects in this list of. So ये document share हुआ हुआ है, right? Sure. That must definitely that must have been with you. Okay, I'll check it, sir. Check it. See, the first what we have delineated in this document, basically it's the constitutional framework and the citizenship, historical background, some of the aspects that from where constitution has been derived, and what are the we can say the salient feature need for effective governance. So I will enumerate very fast कि भी हम तेजी से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. Constitutional framework and citizenship, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस में आया, उसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स वो क्या है, उनके बारे में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिंक्ड हैं एक दूसरे से. दूसरा यूनियन गवर्नमेंट, जुडिकेचर, दैट स्टेट गवर्नमेंट and provisions related to local government, miscellaneous topics, that is some other bodies and amendments and related articles to amend the constitution. Amendments and articles of the Indian Constitution, these are we will say this the flexibility and versatility. और relevant है, काफी हद तक relevant इसलिए क्योंकि
50 का कॉन्स्टिट्यूशन है और 2020 है, काफी सारे चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट्स को इनेक्ट किया गया और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं 368 एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस इन व्हाट आर द प्रोसीजर एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। प्रोसीजर्स क्या है उसको थोड़ा समझेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास एंड इन कमिंग क्लासेस। I will try to move fast to complete this document so that in second phase we will be discussing that in a bit more detail, covering almost deeper part of the polity and governance. So ये चीजें हैं, इनको ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर होगा, आप इसे पढ़िएगा। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। एक सिंपल सी बात हम ऐसे समझते हैं कि वी वर रूल्ड बाय the British government। उससे पहले इंडिया एक बिजनेस टेरिटरी की तरह था, बिजनेस टेरिटरी की तरह था, और इस पर बिजनेस करने के लिए जो चार्टर मिला था वो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। और चार्टर क्या होता है आप जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर और चार्टर्ड? विल एनीबॉडी टेल मी? चार्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर। जी, कॉन्ट्रैक्ट। चार्टर्ड, हेलो, चार्टर्ड। आप एक बार थोड़ा सा क्लियरली प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंस कीजिएगा। चार्टर्ड, authorized by any competent civil or government। ऐसा कोई भी प्रोविजन और पॉलिसी जिसको कोई कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करे और वैलिडेट करे, उसको हम चार्टर बोलते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो बिजनेस करने का चार्टर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी की उस टाइम कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक बल्कि कहिए, मोनोपोली रही। ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश कंपनी आई थी, अदर ड्यूज भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, but this company maintained the prevalence over the other companies of other European government, or we can say European states। तो ये राज करते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब फंक्शन किया, ये हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद की। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो मनमानी करने लगे, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज करने लगे। ठीक है जी, तो मिसयूज शुरू हो गया, तो यहां पर मैल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। और इस चीज की खबर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये, इसमें देखिए हमने मेंशन भी किया है इसमें। हाँ, मैं सोर्स और आपको बता दूं कि बहुत अच्छे सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां से आप इस सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट एस्पेक्ट है ये, हमारी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट एस्पेक्ट्स है। अभी लेटेस्ट जो अभी इसके अंदर दो पार्ट हैं, आप रेलेवेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, स्टैटिक पार्ट की भाई पिछले इतने टाइम से जो डेवलपमेंट हुए हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेवलपमेंट्स व्हिच वर वेरी मच अफेक्टिंग our the citizen of a
country, and now still it has a direct bearing on our life. Then that we say the dynamic part. Dynamic part, that we say the current aspects of quality in our life. और इसका हमें मिलता कहाँ से है, इसकी जानकारी हमें करंट एस्पेक्ट्स की कहाँ से मिलती है इन जनरल की हो क्या रहा है, चाहे वो हमारे लेजिस्लेचर में हो, जुडिकेचर में हो, या हमारी एग्जीक्यूटिव में हो. इनका पता हमें चलता है ज्यादातर न्यूज रूम से, प्रिंट और एनी, या तो आप अखबार है किसी भी माध्यम से, आप टेलीविजन है, आप इंटरनेट है, किससे भी आपको मिलता है. अब स्टैटिक पार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास कुछ एक इमिनेंट सोर्सेज हैं, इमिनेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेज, इमिनेंट एंड रेलेवेंट. मैं आपको कहना चाहूंगा जिनको आप पढ़ें वक्त मिलने पर. द वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू Indian Constitution, written by Dr. Durga Das Basu. And the second one is the Constitution, a cornerstone, India, written by Granville Austin. ये दो सोर्सेज हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे, और देयर आर लॉट मोर सोर्सेज बट दीज आर द सफिशिएंट वन, एंड some of the other aspects related to that current and contemporary changes that we will be discussing meanwhile covering this entire aspect of Indian polity. So what happened in that historical background? This is what. So in India, we were basically ruled by the British government, and somewhere at 1850 there was the first attempt made to make India independent, and that kept on continuing, and the country was smoldering to come out of the clutches of the British people, because they were siphoning our resources from our country to their country, and the officials, be it of company officials, but or the British government officials, were siphoning the resources from India to their country, and became very much wealthy. And that is why the British government directly started interfering in governing India. So to try at least to seize the authority of that East India Company, and taking control of India, as a dominion. So this all happened, and there are certain aspects that we can understand through several acts which were promulgated, some last 200 to 250 years किए गए. उनके ऊपर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कुछ एक उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे. Then regulating Act 1731, the British government to regulate affairs of the East India Company. British government ने East India Company के जो बिजनेस अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया. डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ द बंगाल एज. हाँ, अब एक और भी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो ब्रिटिश
रूल होता था इंडिया पर वो बंगाल से हुआ करता था, बंगाल से हुआ करता था। तो वहाँ के वहीं पर ज़्यादातर गवर्नर जनरल वायसराइज वहीं पर रहा करते थे और वहाँ से वो कंट्री हमारे 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 डोमिनियन, अपने ब्रिटिश डोमिनियन को हमारी टेरिटरी पर वो रूल किया करते थे। देयर आफ्टर केम द पिट्स इंडिया एक्ट in 1784. Indian affairs under the direct control of British government. Board of control was established. Charter of 1793, salary of company to drawn from the Indian Exchequer की जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे वो जो भारत का एक खजाना तैयार हुआ था, एक्सचेकर मीन्स खजाना होता है जिसे आप कह सकते हो कि मेड आउट ऑफ टैक्स एंड मेड आउट of collection of taxes and natural resources. तो वो वहां से कलेक्ट होता था. गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ governors to override the decisions of council that was mentioned in the Charter Act of 1793. Company got monopoly of trade with India for another 20 years. Earlier, company was having monopoly because no other British company was trading in India earlier than this time also. So the Charter Act 1833. I'm moving a bit faster because these things we will be formally we can find these things formally in the Indian history also. We will be coming faster onto the Indian polity and the different provisions and articles. That's why I'm simply moving to a bit faster. The Governor General of Bengal became the Governor General of India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. If it is asked, Lord William Bentinck was the, and at that time there were several social movements were also recognized. Social movements were also recognized, like Sati Pratha, Bal Vivah, and these children's temple that was taken into consideration at that time also. Then Act centralized British rule in India, created Government of India. East India Company lost its monopoly of free trade and China trade. Indian civil services was founded. This was the very important aspect, the foundation of civil services in India, which was the ruling on India with strict control was problem to British government, and they were looking for the mechanism. They were looking for the mechanism so that a rule could be automated using Indian people. So Indian civil services was formed. This was the very crucial aspect of that charter, which made the functioning of British government and control of British government efficient, and that later also contributed heavily into the Indian that I will say that in draft of the Constitution of India, because more at the assembly and at the time of formation of that legislative assembly and legislative councils, these people were having that much of experience to put their suggestions for effective ruling in after post-independence era.
So that was very important from the point of view of British government and from the point of view of after post-independence, the proper functioning or proper governance of government in India also. So Chartered Act 1853. This is the chronological order basically. This is what the chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये चीजें जिससे कि आप याद रख पाए इस सीक्वेंस में हमने ये कवर किया है. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, act also known as Act for the Good Government of India. Company rule was replaced by British Crown. Secretary of State for India was appointed to exercise the power of Crown. He was a member of British Cabinet responsible to it and was assisted by Council of India with 15 members. Governor General became the agent of the Crown and also now known as Viceroy of India, and Lord Canning became the first Viceroy of India. The first Governor General of India was Lord William Bentinck, and the first Viceroy was Lord Canning. This we can, as a factual information, we can keep that in mind. Thereafter came the Indian Council Act 1861. Parliamentary system was started in India. Indian became non-official members of the legislature. Non-official members of the legislature started decentralization of power. Recognition of the portfolio system was introduced by Lord Canning in 1859, and the decentralization basically, some of the understanding you all must be having that the power must be somewhere distributed to the different functionaries of the government. This is clearly and explicitly written in our country constitution that we will be discussing. थोड़ी देर में उसे discuss करेंगे. तो अब उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस. गवर्नर जनरल could nominate members. Functions of legislative council expanded to discuss the budget and answer questions to a dispute. This was taken into. These were the main provisions out of that long list of several other provisions. The main provisions, and because these are the derivatives of the provisions of the other earlier acts also. That's why these are the point of differences that we have found relevant to the meeting. So. Indian Council Act in 1909, Monte-Merlo reforms. Lord Morley was then the Secretary of the State for India, and the Lord Minto was then the Viceroy of India. So the Central Legislative Council became Imperial Legislative Council with official forming majority. Central Legislative Council, and this Legislative Council, this concept of Legislative Council played a very important role later in conceptualizing the Indian Constitution. So, Provincial Legislative Council had the majority of non-official members. Non-official members means the cases, eminent persons from the some of the functionaries and eminent persons from the political system of the current political at that contemporary political system at that time were made the non-official members. They were having, they could have proposed their opinion, but they could not voted in favor of or in opposition of any particular provision. And Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy Executive Council, introduced communal representatives for Muslims with a separate electorate system, and legalized communal communism. Lord Minto created a communal electorate. Electorate, आप सब जानते हैं, electorate means हाँ जी, electorate मतलब बताएंगे? हेलो, हाँ जी, हेलो, सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब बताइए, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है?
People who can vote in a region. सिंपल सी इतनी तो बात पूछ रहा था मैं। that must ये आप सब लोगों को एटलीस्ट पता होगा या होना भी चाहिए, ठीक है ना। Then Government of India Act 99, Montagu Chelmsford Reform. Montagu was the Secretary of the State for the India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. The separate central subject separate central subject from provincial subject. Separated central subject from provincial subject. Central and provincial. Provincial, जैसे अगर हम प्रोविंशियल की बात करें तो उस टाइम पर अवध हो सकता है, और बंगाल, हैदराबाद। थोड़ा हिस्ट्री में आपको सब लोगों ने पढ़ा होगा, हैदराबाद, ये पंजाब और बलूचिस्तान, असम, ईस्ट बंगाल, ये प्रोविंस थे उस टाइम पर। सेपरेटेड सेंट्रल सब्जेक्ट फ्रॉम प्रोविंशियल सब्जेक्ट, हर जगह की अपनी कुछ जरूरतें होंगी, तो उनके अपने एक सब्जेक्ट हुआ करते थे, और एक सेंट्रल सब्जेक्ट जो ऐसा सब्जेक्ट जो सबको इक्वली अफेक्टेड करे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो उनको सेपरेट करने का कोशिश किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व. Transferred subjects were administered by governor with the help of ministers who were responsible to the legislature. And legislature का मतलब आप सिंपली आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है those who group, especially हम इसमें group के लिए समझते हैं, group of people involving enacting laws. So reserved subjects were administered by the governor and executive councils who were not responsible to the responsibility. Hierarchy or dual system of the government was introduced. Hierarchy and dual system means dual system अभी इंडिया के अंदर क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो कितने हैं हमारे गवर्नेंस जो हम इसकी बात करते हैं, हमारे गवर्नेंस मैकेनिज्म के अंदर कितने पार्ट है बेसिकली। अभी करंटली कुछ आप लोग थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को लग ही रहा होगा, पढ़ रहे होंगे काफी टाइम से, तो बताएंगे अभी कितने हैं हमारे यहाँ, अगर हम सिस्टम की बात करें गवर्नमेंट के अंदर, पर गवर्नेंस में। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इट्स आप कह सकते हो कि दिस नाउन एंड गवर्नेंस इज मींस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो काम करती है, ठीक है। तो अभी क्या सिस्टम है इंडिया के अंदर, बाई कैमरल। हाँ जी, लेजिस्लेशन है और एग्जीक्यूटिव है। हाँ अभी समझ लीजिए, अभी हमारे यहाँ पढ़ना थ्री डोमेन्स है। द वेरी फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर लिखिए आप, यूनियन लेजिस्लेचर। सेकेंड वन इज जुडिकेचर एंड थर्ड वन इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये तीन पार्ट है, ठीक है ना। मेन तो यही तीन पार्ट है, हमारा कंट्री इन्हीं तीन पार्ट्स है, और इन तीनों के अंदर एक और भी चीज है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इंडिया के अंदर अपर हाउस को क्या बोलते हैं, अभी कुछ बताएंगे?
इंडिया के अंदर अपर हाउस क्या है पार्लियामेंट में? राज्यसभा। हाँ, पार्लियामेंट में अपर हाउस है राज्यसभा। लोअर हाउस क्या है? राज्यसभा इंडिया के अंदर अपर हाउस राज्यसभा है। यूके में क्या बोलते हैं इसको, कुछ आइडिया है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो लोअर हाउस है इंडिया में क्या बोलते हैं उसे? लोकसभा। लोकसभा। और यूके में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना। और हाउस ऑफ कुछ जगह पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज वर इलेक्टेड डायरेक्टली। दोनों उस टाइम पर दोनों जो हाउसेज थे, अपर हाउस और लोअर हाउस में ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट होते थे। बट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन वाज बिट डिफरेंट, not bit different. Concept of election was very different. मतलब जनरल इलेक्शन का कंसेप्ट ऐसा नहीं हुआ करता था। जनरल इलेक्शन मतलब आप समझते हैं, इलेक्शन फॉर द ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर अडल्ट फ्रेंचाइजी एक्सरसाइज होती है ना। तो वो उस टाइम पर ऐसा नहीं। 3 of the 6 members of the गवर्नर जनरल काउंसिल had to be इंडियन, जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे किसी भी तरह के सोशल मूवमेंट में, वो लोग उस टाइम पर रिप्रेजेंटेटिव्स में काउंट हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैव अ वेरी ह्यूज बियरिंग, or we can say a lot of scholars and the philosophers of this political science and polity have said that mutatis mutandis, India, the current Indian governance or Indian polity has been the Government of India Act 1935, means almost 70 to 80% of current Indian government, Indian political system is influenced by Government of India Act 1935. Mutatis mutandis, that was criticized. That was the criticism, basically. That was the criticism. ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काफी हद तक जो है वो जिस टाइम पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी तो उसको काफी हद तक इसको रेफर किया गया है। Then it provide for the constitution, provided for the establishment of Reserve Bank of India, Federal Court, Public Service Commissions, Provincial Public Service Commissions, Joint Public Service Commissions for 2 or more provinces. Federal, provincial and concurrent list were introduced. ये सारी चीजें आप अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी तक एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इंडियन पीपल डिड, तो भारतीय लोगों ने करा क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, तो भारतीय लोगों ने करा क्या? दे customized it and incorporated some most relevant features of other world countries कॉन्स्टिट्यूशंस, उनको इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद फिर ये आया द अगस्त ऑफ 1940, एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस। ऐसा भी इसलिए किया गया, इंडियंस को इंक्लूड किया गया क्योंकि
जो इंडिया के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट है वो काफी हद तक स्टार्ट हो चुका था। फ्रीडम मूवमेंट और सेंटिमेंट ऑफ पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इरप्ट होना शुरू हो चुका था। सेंटिमेंट ऑफ इंडियन, तो ज्यादा इनकॉर्पोरेट किया जाने लगा इंडियंस को, बिकॉज द वॉइस यूज्ड टू बी। उसके पीछे और कुछ एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं। इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इनका काफी बड़ा रोल है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे फिर दोबारा से इसको कभी उसमें जब नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज दैट हाउ दैट these aspects affected and led to the greater representation of incorporation of Indian people in the governance at that contemporary government. So the Cripps proposal in 1942, provision made for the participation of the Indian states in the constitutional making body. Leaders of the principal sections of the Indian people were invited to take active and effective participation in council for their country. CR formula 1944, CR Raja Gopalachari represented the CR formula by which Muslim League could, हाँ इसमें दो चीज और भी आप समझिएगा, याद कीजिएगा कि दो मेन पार्टी थी उस टाइम पर। फ्रीडम मूवमेंट एक तो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग फॉर्म इसलिए हुई क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्यादातर ब्रिटिश ऑफिशियल्स हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से और हिंदू पार्टी के नाम से आप कह सकते हैं कि हिंदू पार्टी के नाम से उसे उसको कह सकते हैं आप हिंदू पार्टी के नाम से मतलब कह सकते हैं दे वर बेसिकली गिवन मोर एपिथेट कहते हैं सिंपली भाई कि वो हिंदू पार्टी। तो ये माना गया। तो उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो बाकी के क्योंकि कम्युनल पॉइंट तो आइडेंटिफाई कर ही लिया था ब्रिटिश पीपल ने जब गवर्नमेंट जब इंडिया पर ये रूल कर रहे थे। तो वो इस जो फॉल्ट लाइन को उन्होंने एक्सटेंड किया और मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। तो ये यहाँ पर अब बात आई फिर उसके बाद ग्रीवांस की। ग्रीवांस आने लगा, मुस्लिम्स के अंदर ग्रीवांस आया कि भाई ये तो जो पार्टी है इंडियन हिंदू की है, मुस्लिम जो एक माइनॉरिटी है उनका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर पॉलिसी टू सेटिस्फाई। तो CR formula, then Muslim League would support the Congress demand for complete freedom. That formula was incorporated, and against that Muslim League were given some of the percentage in representation in the assembly, that is legislative assembly. Then later Lord Attlee announced in March 1946 and 1946, Lord Attlee declared that the tide of nationalism was surging in India. It was in the British interest to take positive action, and और काफी हद तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी इसमें रोल रहा। ये एटली ने इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पर सजेस्ट किया that was basically proposal made to the British government at that time. Then cabinet mission plan in 1946, there should be a union of India embracing both British India and the state which should deal with the foreign affairs.
to set up interim government. A constituent assembly should be set up to draw upon the future constitution of the country. And later India was given independence, and Indian Independence Act 1947 was promulgated and India declared as an independent sovereign state. Established a responsible government at the central provinces, designated Governor Generals of India and provincial governor of constitutional heads and the nominal heads. Lord Mountbatten became the first Governor General of India, and the first and the last Indian Governor General was the C. Rajgopalachari. After that, Rajendra Prasad became the president of the first Free India and became chairman of the drafting legislative council and legislative committee of Free India. This is the chronological order. I will say कि आप इसे एक बार refer कीजिएगा, and there are lot more interesting aspects which we can read and can relate. तो अब इसके बाद आता है interim government. 1946 के अंदर interim government क्या थी? Interim government means interim में बताएंगे interim का मतलब? Intermediate. No. Interim means temporary or provisional. Interim means provisional. Temporary इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि interim का मतलब है that gives us an impression of temporariness. ठीक है ना? जैसे कभी कभी कोर्ट ऐसा करती है ना कि इंटरिम ऑर्डर, वो मैं आपको जुडिकेचर में बताऊंगा, ठीक है ना? इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास करती है. तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब है दैट इंटरिम मींस टेम्परेरी एंड फॉर द सेक ऑफ रिलीफ. ठीक है. तो इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? जब तक कि इंटरिम मींस टेम्परेरी, प्रोविजनल, जब तक कि एक परमानेंट गवर्नमेंट का परमानेंट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट. और परमानेंट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चीज चाहिए थी उस टाइम पर हमारे कंट्री में पीपल ऑफ इंडिया को क्या चाहिए था? इंटरिम से परमानेंट में आने के लिए क्या चाहिए था? मेथड्स एंड प्रोविजंस. और वो किस फॉर्म में मिलते? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में. और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? लॉज एंड लेजिस्लेचर. मान लीजिए अगर हम कोई भी हम एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कब चलेगा सिस्टम? हाँ जी, सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, कार्तिक, आर यू लिसनिंग टू मी? कार्तिक, नफीसा, गवर्नमेंट सिस्टम कोई भी अगर मान लीजिए हमारे घर में ही है, हमारे घर में मतलब 4-5 लोग हैं, हमारे कुछ एक एक्सटेंडेड फैमिली, कुछ एक मेंबर्स हैं, और हमें एक फैमिली सिस्टम है. अगर इसको इफेक्टिवली फंक्शन कराना है, या चलिए हमने कोई छोटा सा काम शुरू किया, उसको एक सिस्टम हमें क्रिएट करना है, तो सबसे उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए? we will form rules. We will form rules and some of the laws. कि हम इस तरह से काम करेंगे. Only then system can be created, ना? गवर्नमेंट क्या है? What is government? What is government? गवर्नमेंट क्या है?
A body that government is a system. Government is a system which is backed by rules and government is a system which is backed by rules and laws. ठीक है, तो उसको परमानेंट से एक इंटरिम गवर्नमेंट से परमानेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए, परमानेंट सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए था पीपल को? मेथड्स एंड प्रोविजंस, ठीक है ना? तो वो उसके लिए फिर एक रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, रिटन डॉक्यूमेंट बनाने का सोचा गया। ठीक है जी। तो ये इस तरह से फिर तो जब वो अब बात आती है कि 1947 में कंट्री फ्री हो गया, 1947 में हमारा कंट्री जो है वो फ्री हो गया, हम अपने कानून खुद बनाने के लिए आजाद हो गए। तो वो बनेंगे कैसे, है ना? हम अपने देश को चलाने के लिए आजाद हो गए 1947 में, 1947 में। व्हाट हैपेंड लेटर पीपल फाउंड द रिक्वायरमेंट ऑफ methods, and that methods were not available except Government of India Act 1935। तो 1947 से जब इंडिया 26 फरवरी 1950 तक जो इंडिया गवर्न हो रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो रहा था। और इसी दौरान फिर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? अब बात आती है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटी, स्टार्टिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने एक छोटा सा ट्री डायग्राम बनाया है, इसे देखिए। ये देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर यही है कि भाई जो क्या क्या एक्ट्स थे जिनके बेसिस पर हमने समझा कि कैसे उस टाइप की कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट और कंटेम्प्रेरी सिस्टम फंक्शन किया करता था। फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लेटर प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड सोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड देयर आफ्टर कम्स द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, objective resolutions and important committees which were involved in making of the constitution। ठीक है, तो अभी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर वो चीजें समझी। जब 1947 में देश आजाद हो गया तो 1947 से 1950 तक what were the changes or what were the requirement that at that time country the people were finding for the effective and the proper functioning of government and the governance in India। So that we are going to discuss। अभी से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने इसे मेंशन किया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब उसके बाद बात आई कि 1947 में कंट्री फ्री हो गया तो कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोला गया। उसको मैं आपको नीचे बताऊंगा, ये प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम, इसको अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग लॉ। Indian Constitution is a living and organic document which of all instrument has the greatest claim to be constructed broadly and liberally। This has been incorporated in All India Reporter। AIR means All India Reporter। ये कंपाइल करता है जितने भी आपके हम कहते हैं कि कहना चाहिए जितने भी डिसीजंस आते हैं किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट की, ठीक है ना। इट गारंटीज beside the other rights protection of life, personal liberty, provides adequate safeguard against the arbitrary deprivation thereof by the state। arbitrary deprivation thereof by the state means जैसे क्या समझ रहे हैं इससे आप? कोई प्रोजेक्ट आया, उसके लिए जमीन चाहिए,
स्टेट ने एक इंटरिम ऑर्डर, एक इंटरिम ऑर्डिनेंस क्रिएट किया, टेम्परेरी ऑर्डिनेंस, और उसको वहां पर एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की किसी भी आर्बिट्रेरीनेस से इंडिविजुअल और द सिटीजनरी को बचाने के लिए वो एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज not constructed as a mere law but as the machinery by which laws are made. समझ रहे हैं आप इसे? देखिए, constitution is not constructed as mere law. There are lots of laws, ठीक है ना, वो लॉ में एग्जिस्ट करते हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉज, that is information technology act, and a lot more acts are there which comprise several laws, but as the machinery by which the law are made. And there are certain cornerstones or bulwarks which are taken into consideration referring constitution. The normal rule applicable to the interpretation of statutes are equally valid in the field of constitutional interpretation. And Article 367 inter alia को मैं यहाँ पर interpret कर देता हूँ, means among other things, among other things, clarifies that the General Clause Act shall apply to the interpretation of the provisions of the Constitution, but the Constitution is the fundamental and the supreme law which creates the legislature and under which all the laws of the land are to be enacted and draw their legitimacy. This we can say the sole aspect. Doctrine of liberal interpretation, principle of harmonious construction, doctrine of severability, doctrine of prospective overruling. These are taken into consideration while forming the any law or promulgating any law or any amendment in the Constitution as well. And apart from this, the preamble plays a very important role to maintain the sanctity and the basic nature of the functioning of Constitution or supremacy of Constitution. Then the parts of Constitution, part 3, part 4, part 5, fundamental rights, directive principles of the state policy, fundamental duties. अब इसके बाद हम नीचे इसमें आते हैं, directive principles of state policies. इसके अंदर मैंने आपको बताया होगा, making of Constitution. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 3 चीजें देखी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है ना, एंड इंपॉर्टेंट कमिटीज। तो अब आप इसके अंदर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि मैंने शायद डॉक्यूमेंट में वो मेंशन नहीं किया है, उसको लिखा नहीं है, तो मैं आपको वैसे आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा उसको लिख लीजिए, ठीक है ना, लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, इसके 2-4 पॉइंट्स ही हैं। ओके सर। हाँ लिख लीजिए, जरा लिख लीजिए। सर आप ये लिख पा रहे डॉक्यूमेंट हैं? शेयर कर देना, क्योंकि ड्राइव पे शायद है नहीं। अच्छा, ये अभी है नहीं? नो सर। तो हमें वो तो शेयर होना ही है, इट्स बाउंड टू शेयर, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के अंदर तो बेसिकली हम एक्ट्स के उसको कंसीडर कर सकते हैं। देन देयर आफ्टर कम्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की भी क्या क्या ऐसी चीजें थी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए और रखी गई, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच वर necessary to be taken into consideration. वो रेजोल्यूशंस मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं। इस
फ्रेम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जी वो एक तो पहली चीज तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा वो ऑब्जेक्टिवली रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए सिटीजनरी ऑफ इंडिया को, और डिग्निटी, सेफ्टी एंड इक्वलिटी प्रिंसिपल पर वो होना चाहिए। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे कि अमेंडमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो किया जा सके। These are the few important 4 or 5 points which we can enumerate as. Sir, what was the first one? Sorry. First one was basically कि भाई जो सिटीजनरी है उसका appropriate representation होना चाहिए ना। That was the first resolution which we can understand as to take into consideration while making the Indian Constitution. ये representation जो है वो fair होना चाहिए और एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो मेंशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, किस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे है और ये क्या आपने करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कुछ कमेटीज, कमेटी के अंदर जैसे अगर हम बात करते हैं क्या है कमेटी के अंदर, कमेटी के अंदर तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एन्यूमरेट कर दूं मैं एक बार, प्लीज आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या है, रेजोल्यूशंस क्या है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली चीज तो जो कंट्री है वो रिप्रेजेंटेड बाय पीपल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन फेयर होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन फेयर का मतलब है कि कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, आप समझ रहे हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि फेयरली सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी वॉइस को या अपने व्यूज को रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो चीज उसके अंदर होना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दैट टू इन द रिटन फॉर्म, दैट मस्ट बी समवेयर मेंशन्ड इन द रिटन फॉर्म, ठीक है, दैट मस्ट बी दीज आर द सम ऑफ वेरी प्रिंसिपल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये चाहे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो इक्वलिटी है, प्रिंसिपल है इक्वलिटी का है, फेयरनेस का है, डिग्निटी का है, वो उसके अंदर होना चाहिए। इनको आप प्लीज आप चाहें तो लिख लीजिए इनको, ठीक है ना। ये बेसिकली ये चीजें हम वैसे अपने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन जनरल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर ड्यूटीज को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया है, ठीक है ना। ड्यूटीज को बहुत ज्यादा इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है। बेसिकली रेजोल्यूशन के अंदर हम इमेज जो है वो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड रिप्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस एंड डिग्निटी की रखी हुई, ये चीज है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटीज की। आप इंपॉर्टेंट कमेटीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी भी मेंशन किया है, वो ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी हेडेड बाय, कौन इन ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड कई मेंबर्स थे फिर उसके, ठीक है ना। वो आप मैं इस डॉक्यूमेंट में ना एक अडेंडम भेजूंगा आप लोगों को, उस अडेंडम में आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी मैंने उसमें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को हम इस हिसाब से रखते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी ना होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक कमेटी थी, वो थी फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी थी, ठीक है जी। फ्लैग कमेटी में जो चेयरमैन थे वो कृपलानी जी थे, कृपलानी जी, ठीक है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट कमेटी, कमेटी तो कई सारी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इसके जो
हेड थे, चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कमेटी हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। Can you कमेटी repeat तो the chairman of last committee? फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है वो हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Okay, sir. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो उन्होंने जब 1947 से 1950 के बीच में जब कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे पीरियड हम बोलते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अलग अलग लोग रोल प्ले कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, प्रिपरेशन भी कंसिडर प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है सर, ये चीज आप इतना आप इसमें ध्यान रखिए। ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आपको काफी सारी बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स मींस ऑल द एक्ट्स। इवेंट्स के फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बात है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पर हिंदुस्तान टाइम्स में ये एक मैं आपको बताता हूँ, ग्रीनवेल ऑस्टिन की बुक है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो करीब 1950 26 जनवरी को जो है हिंदुस्तान टाइम्स में ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने कहा था, एंड दैट वाज द रिजॉइसिंग मूवमेंट। वो इम्पोर्टेंट इवेंट थी। तो इम्पोर्टेंट इवेंट के फॉर्म में हमारा जो देश का आज़ाद होना है, इम्पोर्टेंट इवेंट के फॉर्म में हमारा रिपब्लिक डे के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाना 26 जनवरी 1950 को। अब बात आती है 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1930 को आईएनसी जो थी वो ये हर साल ओथ लेती थी इंडिया को फ्री करने। तो 26 जनवरी को इसलिए रखा गया कि पिछले काफी टाइम की मेहनत वो आगे आने वाले समय में वो दिन के फॉर्म में, वो डेट के फॉर्म में याद रखी जाए। तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए जो है रिपब्लिक डे के फॉर्म में बनाया गया। और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर किया गया पब्लिक, इंडियन पीपल ने इंडियन पीपल को, लोगों ने लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स कह सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में आपने नाम पढ़ा भी होगा, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री में समझ सकते हैं आगे हिस्ट्री में, क्योंकि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक सेपरेट पार्ट है, उसमें सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। अभी आप यहाँ पर भी देखिए तो ये देखिए यहाँ पर भी आप इंटरिम गवर्नमेंट में जो पोर्टफोलियो हेल्ड किए थे, कौन क्या था इंटरिम गवर्नमेंट में, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया ही हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर को देखते थे। डॉक्टर जॉन मथानी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज को देखते थे। मथाई जगजीवन राम जी लेबर देखते थे। सरदार बलदेव सिंह। हाँ, एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, एक जो मैंने यहाँ पर लिखा है मुस्लिम लीग और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें एक रिप्रेजेंटेशन की और बात थी, वो था सिख का रिप्रेजेंटेशन, सिख्स का, सिखिज्म है ना, इनका रिप्रेजेंटेशन। तो अकाली जो एक उस टाइम पर एक ग्रुप हुआ करता था, वो रेस क्या करते थे अपनी वॉइस को, देयर रिप्रेजेंटेशन फेयरली इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ। और बाद में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में legislative council, the councils, yes, this is the, okay. That was this is the portfolio. This is the list of people holding different portfolios at the interim government.
एंड द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। ये उसके बाद जब फर्स्ट फ्री इंडिया में प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस था मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। और इसके बीच में काफी ज्यादा चेंजेस आए, ब्लड बाथ भी हुआ, ड्यूरिंग पार्टीशन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये देख लीजिए कि जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था तो ड्राफ्ट कमेटी कहाँ से रेफरेंस ले रही थी, तो वो कौन कौन से सोर्सेज थे, है ना। सोर्सेज थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रोविजंस बोरोड कहाँ से लिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नियरली 70 to 80% पार्ट of the Indian Constitution had been taken from the Government of India Act 1935. Federal scheme means, federation means central and state. Central and state. हमारा देश है, हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री भारत है, नक्शा है देश का, इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तरह से अगर हम देखें तो हर एक स्टेट जो है वो एक तरह से उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि डोमेनियन, ब्रिटिश डोमेनियन में प्रोविंस हुआ करते थे। उस टाइम पर प्रोविंस थे, आज हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। कंटेम्परेरी प्रोविंसेस, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन बेसिकली इट्स अ फेडरेशन। तो इंडिया जो है वो बेसिकली फेडरेशन स्टेट है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनाइटेड किंगडम, वहां से क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वर्ल्ड में, कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ आइडिया है आपको, बताएंगे कितने टाइप का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्यादातर, अगर हम अक्रॉस वर्ल्ड कंट्रीज पर नजर डालें तो। पार्लियामेंटेरियन, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, presidential and presidential and dictatorship. presidential form of government, presidential form। तो लार्जली यही दो फॉर्म कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप तो बहुत कम आपको ये की रही है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मोनार्की, है ना। मोनार्की कहाँ है, मोनार्की अभी हमारे आसपास कहीं है मोनार्की, याद है, कुछ देख पा रहे हैं, भूटान, हाँ भूटान में अभी भी मोनार्की है, ठीक है जी। तो वैसे अदर वर्ल्ड कंट्रीज में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, बेसिकली इट्स द parliamentary form of parliamentary system means government by representatives, है ना। parliamentary system leads to government by representatives, bicameral parliament, prime minister, council of ministers, single citizenship, office of CAG means कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड अब एक अभी चीज में याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, CAG एक ऐसी बॉडी है कंट्री के अंदर, इन आवर कंट्री, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG does not come under the purview of पार्लियामेंट। CAG रिपोर्ट किसको करती है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का।
CAG जो है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को देता है, ना कि पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट अपनी अलग कमेटीज बनाते हैं किसी भी केस को या किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उसके अगेंस्ट पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। Writ jurisdiction of court and rule of law. There are different kind of writ jurisdictions that I will be discussing later on. Thereafter, USA. Written constitution. अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। USA, written constitution, fundamental rights, Supreme Court, President as an executive head of the state, impeachment of the President, removal of Supreme Court and High Court judges, Vice President as chairman of Rajya Sabha, judicial review and independence of judiciary. That has been taken from USA. Thereafter, Australia, concurrent list, cooperative federalism, joint sitting of two houses of parliament, USSR, United States of Soviet Republic, erstwhile, इसके आगे लिख लीजिए erstwhile, अब नहीं है, fundamental duties, Weimar Constitution of Germany, suspension of fundamental rights during emergency, ballot system, Canada, federal system, residuary powers, appointment of governors, advisory jurisdiction of Supreme Court, South Africa, procedure of constitutional amendment, electing members of Rajya Sabha, ये important provisions borrow किए गए हैं। Ireland, concept of directive principle of state policy, nomination of members of Rajya Sabha by the president and presidential election. इंडिया के अंदर जो presidential election है indirect election है। ये एक important provisions हैं जो हमने while making of constitution drafting committee had taken as references, ठीक है, याद रखिएगा ना, एक बार रिवाइज कीजिएगा एंड वी विल बी रिवाइजिंग दैट लेटर ऑफ क्लास। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन मींस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली एंड नॉट इन ए नैरो सेंस। Also, besides the general rule, there are some special rules for the interpretation of the Constitution. Every provision of the Constitution has to be so constructed as to give meaning and relevance to every word used. इसका मतलब ये liberal interpretation, ये basically to remove ambiguity. It उसके बाद आप देखिए, it has been held by Supreme Court that unless otherwise indicated, every word is supposed to have been used in the normal and ordinary connotations should be given in plain common sense. Case Vanand Bharti versus State of Kerala, where ये बहुत important case है, Case Vanand Bharti versus State of Kerala। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि इसके बेसिस पर क्या एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1973 में। दैट वाज बेसिकली टू अंडरस्टैंड, डेवलपमेंट क्या था मैं बता देता हूं आपको। बेसिकली टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट basic structure of Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में न तो लिखा गया है न लिखा जा सकता है। व्हाट वी कैन do or what any legislative or interpreting body can derive
ठीक है, वो डिराइव किया जाता है। सेंस, बेसिक स्ट्रक्चर और इसेंस क्या है। केस वन भारतीय केस में इस चीज को दैट वाज द म्यूटेबल पॉइंट बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड एज होल विद ड्यू इंपॉर्टेंस गिवन टू एवरी आर्टिकल where two provisions appears to be in conflict under the principle of harmonious construction, the meaning which gives effect to both the provisions and ensures their smooth and harmonious cooperation should be accepted. Venkataraman versus State of Mysore, State of Madras versus Champalal, Gopalan versus State of Madras. Principle of harmonious construction needs to remove conflict of interest. Means no two, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, no two or more than two provisions must be in contravention to each other. Doctrine of severability means separation of power. ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से किसी एक दूसरे के साथ जो है वो सेवरेबिलिटी अलग अलग होना चाहिए. Doctrine of prospective overrule as adopted by Supreme Court, and the interpretation given by the court and the law declared by it may not be given a retroactive operation, that is the validity of past act may not be affected. तो पीछे अगर कोई चीज हो जाए तो उसकी वैलिडिटी जो है वो अफेक्टेड ना हो, तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का डॉक्ट्रिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं प्रिंसिपल्स. नाउ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर आप देख लीजिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया पार्ट के आर्टिकल 12 टू 13 थोड़ा सा रहना चाहिए. जनरल व्यू इसको देखते प्लीज. Amendment 2 articles schedules. यहाँ schedules. तो अब हम बात करते हैं पूरा स्ट्रक्चर हम इसमें आप इसे लिख लीजिए. ठीक है ना, आप इसे लिख लीजिए. मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए. There are basically 8 parts we have. देखिए the very first अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन
In this, basically, the very first is nature of constitution, and in that basically preamble, or we can say introduction, or we can say so. ठीक है जी, पहले तो क्या है हमारा पार्ट 1 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूशन, ठीक है जी। अब उसके बाद आप दूसरा इसके अंदर रख सकते हैं, पार्ट 2 के अंदर फंक्शनिंग रख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अंदर आप फिर रखोगे, या इसमें मैं और थोड़ा लिस्ट आउट कर दूं, अगर आप लिख रहे हैं आप लोग, जैसे हेलो हेलो हेलो, अदिति अदिति, हेलो अदिति, गौरिका, कार्तिक, कुशाग्र, यस सर, लिख रहे हैं। नफीसा, लिख रहे हैं? लिख तो आप पार्ट 2 लिखिए, पार्ट 2 लिखिए, इसमें पार्ट 2 लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, ये लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। और इसके अंदर आप लिख सकते, इसके 3 पार्ट कर लीजिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन के। द वेरी फर्स्ट इज यूनियन लेजिस्लेचर, second one is judicature, and third one is union executive, ठीक है जी। ये चीज आप इसमें लिख लीजिए। उसके पार्ट 3 में आप समझ सकते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं गवर्नमेंट, पार्ट 3 के अंदर आप कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर भी सेम इसी तरह से 3 पार्ट आप बना सकते हैं। हर इसमें भी लेवल है, ठीक है, कि भाई अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, अच्छा हाँ एक चीज और भी, हर एक स्टेट के अंदर ना बाई कैमरल नहीं है, हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अंदर पार्ट आप 4th देख लीजिए, पार्ट 4th के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आप कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज में कुछ जगहों पर ओवरलैपिंग है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं पार्ट 5, पार्ट 5 के अंदर आप कर सकते हैं जैसे हम बात कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की। ये वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप 2 तरह से देख सकते हैं, रूरल है, अर्बन, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। उसके बाद पार्ट 6 के अंदर आप कर सकते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, और 6 के अंदर आप ये कर सकते हैं। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एड हॉक काइंड ऑफ स्पेशल पर्पस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ये इसके अंदर
Yes, these are the basically part which we can say composition, constitution composition. And आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, and we will be covering some of the aspects also. ये मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, and you all please go through this.